Okay, so good morning all of you. From today we are going to start with your chapter number 1, that is Securities Contract Regulations Act 1956. Securities Contract Regulation Act 1956. ध्यान देना यहाँ पे सिक्योरिटी लॉ में हमको तीन ही एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, देन सेबी एक्ट 1992 एज वेल एज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, है ना सर? हाँ जी. तो एज द नेम सजेस्ट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? इट मीन्स any kind of contract related to securities. Any kind of contract related to securities. तो contract related to securities का मतलब contract related to buying or selling, contract related to buying or selling of securities, contract related to buying or selling of securities. तो ये एक्ट रेगुलेट करता है क्या? contract related to buying or selling of securities. This act regulates the contract related to buying or selling of securities. And as we know that buying or selling of securities can take place either through stock exchange, है ना? Buying or selling of securities can take place either through stock exchange or outside the stock exchange. Contract related to buying or selling of securities can take place either through stock exchange or outside the stock exchange. ठीक है जी? Plus this act also regulates. This act also regulates stock exchanges. This act also regulates the stock exchanges. So regulating the stock exchanges का मतलब, regulating the stock exchange का मतलब है working of stock exchanges, working of stock exchanges, as well as to prevent speculations, as well as to prevent speculations in securities, and to provide for any other to provide for any other ancillary matters, to provide for any other ancillary matters. ठीक है? अब वो जो ancillary matters होगा, that those ancillary matters will be related to either regulation of stock exchanges, or regulation of contract of securities. Regulation of contract of securities. तो एक बैकग्राउंड क्लियर है हमको? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ने वाले हो?
Securities Contract Act basically deals with the Securities Contract Act basically deals with the regulation of contract related to the securities. यहाँ पे टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? यहाँ पे टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, यहाँ पे टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. एंड एज वी नो दैट बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस आइदर थ्रू buying or selling of securities can take place either through stock exchanges or outside the stock exchanges, either through stock exchanges or outside the stock exchanges. Thus this act also regulates the stock exchanges as well as working of stock exchanges. Okay, and as well as this act prevents speculation. Provisions have been made to prevent speculation in securities and to provide for any other ancillary matters, that might be related to regulation of stock exchanges as well as contract of securities. ठीक है. हाँ जी सर आगे बढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है. आपने बोला कि दिस एक्ट regulates the contract related to securities. हाँ बेटे मैं ऐसा बोला, this act regulates the contract related to securities. पर सर ये एक्ट तो 1956 में आया. हाँ जी बेटे ये एक्ट 1956 में आया, लेकिन सर एज पर आवर नॉलेज सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट या सिक्योरिटीज ट्रेडिंग का कंसेप्ट तो सर 1956 से पहले आ चुका था. एज वी ऑल नो दैट बीएसई हैज शिफ्टेड टू दलाल स्ट्रीट इन 1875 itself, है ना. सिक्योरिटीज हैज बीन शिफ्टेड टू दलाल स्ट्रीट in 1875 itself. BSE was constituted in the year 1855. Later on shifted to Dalal Street in 1875. If we know, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट तो तब से चला आ रहा है सर. आज बेटे तब से चला आ रहा है सर. इनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट 1956 में आया. तो सर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ 1956 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज थे या कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज हुआ करते थे, वो कहां रेगुलेट हुआ करते थे, वो कैसे रेगुलेट हुआ करते थे सर. तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे मैं दो सिनेरियो डिस्कस करूंगा अप टू 1930 एज वेल एज आफ्टर 1930 टिल 1956. और एक्चुअली मैं बात करूं तो 1957 दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट इन 1957 अप टू 1956 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज. मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटीज कहीं और पढ़े तुम लोग? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तुम लोग पढ़ते हो. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जब गुड्स का डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या गुड्स के डेफिनेशन में शेयर्स वर्ड कवर होता है? क्या शेयर्स कवर होता है? हाँ जी सर, शेयर्स कवर होता है. तो इसका मतलब दैट अप टू 1930 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज were being covered. Contract related to securities were being covered under Indian Contract Act. ठीक है. और गुड्स के डेफिनेशन में आता था सिक्योरिटीज टर्म या शेयर्स टर्म, एंड गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे 1930 में, हमको मालूम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया था. एंड इन 1930 एक नया एक्ट हमें मिला था, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो फ्रॉम 1930 टू 1956 contract related to securities were being regulated under sales of goods act.
बात समझ में आ रही है क्या? फ्रॉम 1930 to 1956 contract related to securities were being regulated under the sales of goods act. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. ओके, सो इज इट क्लियर? हाँ जी सर. तो देखो अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट में क्या डील करने वाले? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट provides provisions for regulating the contract of securities. ठीक है? And the contract of securities here means buying or selling of securities. And as we all know that buying or selling of securities can take place either through stock exchange or outside the stock exchange. Thus, this act also provides for regulation of stock exchanges in India. This act also provides for regulations of stock exchanges in India. Then, to provide for prevention of speculation, speculation in the securities market or in the securities. Then to provide for any other ancillary matters that may be related to the regulation of stock exchanges or contract of securities. ठीक है सर. फिर थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने चेक किया that provisions related to regulation of securities contract were being covered under Indian Contract Act up to 1930, then under Sales of Goods Act from 1930 to 1956. ठीक है? हाँ जी सर. Now moving further, ध्यान देना यहाँ पे objectives of the act. Next लिख लोगे objectives of the act. पहला ऑब्जेक्टिव सर अभी आपने बताया था, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेक्युलेशंस, इन सिक्योरिटीज. ठीक है? by regulating the contract relating to securities. ठीक है? हाँ जी सर. then to promote the development of stock market. यहाँ पे STX डॉट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक. then to provide for regulation of stock market or stock exchanges. To provide for regulations of stock exchanges. Then to provide for regulation of securities contract. ठीक है? और जब कुछ और याद नहीं आए तो देख सकते हो. to provide for any other ancillary matters. ठीक है? that may be related to any of the above objectives. बोलो क्लियर है सर? इज इट क्लियर? हाँ जी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्ट.
देखने का यहाँ पे, कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. Stock market plays an integral role in the development of an economy. मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछले क्लासेस में that development of stock market is directly correlated with the development of stock market is directly correlated with the economic development of any country, है ना. It can be directly correlated or is directly correlated with the economic development of an economy. They provide a platform where people who have surplus money can invest, or they can meet with the people who are in need of money. Basically they are corporates, and thus stock market mobilizes the funds from the investors to the company. Thus it becomes very important to protect the interest of such investors, and in order to protect the interest of investors, such contract between the investor and borrower, such contract between the investor and the corporate needs to be regulated. Such contract between the investors and the corporates needs to be regulated. ठीक है बच्चों. हाँ सर. Securities Contract Regulation Act 1956 was enacted with an intention, सर ये तो बता चुके हो आप, with an intention to prevent undesirable transactions, undesirable securities transactions. Undesirable securities transactions का मतलब क्या? Any manipulative securities transactions. सर मैनिपुलेटिव सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का एग्जांपल बता सकते हैं क्या? हाँ बेटे, इनसाइडर ट्रेडिंग. ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट. दिस एक्ट extends to the whole of India and it came into force on 28th of February 1957. ठीक है, 28 फरवरी 1957 से पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, dealing with the provisions relating to regulation of contract of securities. यहाँ पे contract of securities का मतलब क्या? Buying or selling of securities, anything that deals with the buying or selling of securities. Now objectives हो चुका है, objectives में बार बार रिपीट नहीं करूंगा. एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, एप्लीकेबिलिटी एंड एज वेल एज नॉन एप्लीकेबिलिटी. तो एप्लीकेबिलिटी में आप लिख लोगे यहाँ पे write down this act is applicable. लिख लोगे यहाँ पे this act is applicable on all the contracts related to securities. This act is applicable on all the contract related to securities. Yes, done. क्या लिखा आपने? This act is applicable on all the contract. This act is applicable on all the contracts of securities. ठीक है सर? हाँ जी. Now नॉन एप्लीकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी बार एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको ये वाले पोर्शन से आते हैं. देखना यहाँ पे, दिस एक्ट shall not apply to government, RBI, local authority or any corporation set up by a special law. For example, LIC. For example, RBI. Or any convertible bonds or share warrant or any option or any right in relation to. इसका मतलब क्या सर? It means लिख लोगे यहाँ पे any security. It means any securities or any security
issued by any of the following, any security issued by any of the following authorities. Any security issued by any of the following authorities shall not come within the purview of this act. ठीक है सर? Any security issued by any of the following authorities, any securities issued by any of the following authorities shall not come या will not come within the purview of this act. ठीक है? हाँ जी सर. तो any security issued by Government of India, Reserve Bank of India or any local authority shall not be regulated. देखो जनरली क्या होता है, जनरली all the securities, contract related to all the securities are being regulated by this act. Generally contract related to all the securities are being regulated by the provisions of this act. However, any securities issued by the Government of India, RBI or any local authority or any corporation established under any special law or any convertible bonds or share warrant or any option or right in relation thereto shall not be regulated by the provisions of this act. क्लियर है सर? हाँ जी. अब आ जाओगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में. सर हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. हम लोग बार बार बोल रहे हैं दिस एक्ट विल रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज, दिस एक्ट विल रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज. बार बार ही टर्म आ रहा है सर सिक्योरिटी. द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज सिक्योरिटीज, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज सिक्योरिटीज. ठीक है. अब आज की क्लास के बाद तुमने कहीं पे भी टर्म सिक्योरिटी सुना, आज के क्लास के बाद तुमने कहीं पे भी अगर टर्म सुना सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या? सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, सिक्योरिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. तो इन जनरल अगर देखो इसको याद रखना है ना, तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है सिक्योरिटीज का, तो सिक्योरिटीज के रिलेशन में जितने भी टर्म्स आपको याद आ रहे, अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आया, तो सिक्योरिटीज के रेफरेंस में तुमको जितना भी टर्म्स एग्जाम में याद आ रहा है सब चिपका देना. तो क्या क्या चिपका सकते हो? स्टॉक हो गया, सॉरी शेयर्स हो गया सर, हाँ, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक हो गया, डेरिवेटिव हो गया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया, यूनिट्स ऑफ CIS हो गया. ठीक है. एनी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज हो गया. सिक्योरिटीज, हाँ जी ध्यान देना यहाँ पे, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में क्या कह रहा है? शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर. इनसे मिलता जुलता कोई भी दूसरा सिक्योरिटी विच इज मार्केटेबल इन नेचर. मार्केटेबल इन नेचर का मतलब, विच कैन बी sold in the market, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. नेक्स्ट, एनी डेरिवेटिव और एनी सिक्योरिटी रिसिप्ट, डेरिवेटिव और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट. सर व्हाट इज डेरिवेटिव? तो देखो डेरिवेटिव के लिए बोला गया, डेरिवेटिव मीन्स any security which derives its value. Derivative means any security which derives its value from its underlying assets. Derivative means any security which derives its value from its underlying assets. सर आपने लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, बताते हैं. अभी ध्यान देना यहाँ पे, डेरिवेटिव के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक बार डेफिनेशन चेक करो. क्या बोला? कोई भी सिक्योरिटी जो अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट्स. ध्यान देना. लेट्स से आई हैव दिस बैग, है ना, मेरे पास ये बैग है और मैं क्या करता हूं, दिस बैग इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है. अब
मैं हर एक स्टूडेंट को ऑफर करता हूं। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि ये पूरी बैग के अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स ही वेजिटेबल्स है। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा वेजिटेबल है और कितने वैल्यू का वेजिटेबल है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा वेजिटेबल है और कितने वैल्यू का वेजिटेबल है। आई वॉन्ट टू सेल दिस बैग, आई वॉन्ट टू सेल दिस बैग। और मैं बोलता हूं कि तुम लोग कोटेशन लगाओ कितने में खरीदने के लिए रेडी हो। तो कोई स्टूडेंट बोलता है 200, कोई स्टूडेंट बोलता है 300, कोई बोलता है 500, कोई बोलता है 600, कोई बोलता है 100, और जो वेजिटेबल नहीं खाने वाला स्टूडेंट है वो बोलता है 0। ठीक है, वो क्या बोलता है? 0। बोला मुझे तो सिर्फ ये बैग चाहिए, वेजिटेबल में फेंकने वाला हूं या किसी और को देने वाला हूं, मैं तो वेजिटेबल वैसे भी नहीं खाता। मजाक है। तो यहां पे जो तुमने वैल्यूएशन लगाया ना, तुमने वैल्यूएशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स हेल्ड इन दिस बैग और अंडर दिस बैग। तो दिस बैग कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव, दिस बैग कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव। ठीक है, देखो फिर से डेफिनेशन। It means any security which is deriving its value from its underlying assets, from its underlying assets. ठीक है, हाँ जी सर। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा केस ले लो। मान लो कि मैं वेजिटेबल्स हटा करके ये बैग के अंदर कुछ गोल्ड बिस्किट्स रख देता हूं, देन कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स रख देता हूं और कुछ डायमंड्स रख देता हूं, and I am not actually aware of their real value. This bag is full of gold, silvers and diamond, और मैं बोलता हूं कि अब लगाओ बोली, अब बिडिंग करो, अब बिड करो कि कितने में ये बैग लोगे। तो क्या अभी तुम लोग 200, 500 या 600 बोलने वाले हो? नहीं सर। अभी एक स्टूडेंट बोलता है 50 लाख रुपीज, एक स्टूडेंट बोलता है 60 लाख रुपीज, एक स्टूडेंट बोलता है 30 लाख रुपीज। देखो वैल्यू चेंज हो गया ना। तो यहां पे वैल्यू चेंज हो रहा है, यहां पे वैल्यू चेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स कंटेन्ड इन दिस बैग। तो ये बैग को मैं क्या नाम दे सकता हूं? डेरिवेटिव्स। ये बैग को मैं क्या नाम दे सकता हूं? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटीज। आया समझ में? हाँ जी सर। तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फिर से आओ। एनी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर। सर ये स्टॉक क्या होता है? सर ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टॉक इज बंडल ऑफ, एनी बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, एनी बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर पहले शेयर्स इशू किया जाएगा, उसको फुल्ली पेड अप किया जाएगा, उसको फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा, एंड देन ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। ठीक है, सेम कैन हैपन विद डिबेंचर्स आल्सो, तो डिबेंचर स्टॉक हो गया। ठीक है, हाँ जी सर। देन डेरिवेटिव्स और एनी अदर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, देन एनी यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सीआईएस। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो यूनिट्स ऑफ सीआईएस, यूनिट्स ऑफ सीआईएस। Next, units or any such instrument issued to the investors under mutual fund scheme. तो इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि आप लिख दोगे क्या? Any mutual fund units, any mutual fund units. Then any other government securities, then any other government securities, as well as such other instruments as may be declared by the central government to be the securities. देखो, although government securities is falling under the definition of security, although government security is falling under the definition of security, but any security issued by the government shall not be regulated. Any securities issued by government shall not be regulated by the provisions of this एक्ट। तो यहां पे डिफरेंस क्लियर रखना।
ऑल्दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक्ट क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। ये एक्ट क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है सर क्या, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। तो ऑल्दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी बट दैट शैल नॉट बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी बच्चों, हाँ सर। नेक्स्ट, एनी राइट्स और इंटरेस्ट इन दी सिक्योरिटीज, एनी राइट्स और इंटरेस्ट इन दी सिक्योरिटीज। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, तो सर आपने बताया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू दी परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज, एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन